दोस्तों आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो दिखाने वाला हूँ कि एक बहन ने इस्लाम कबूल किया है और किन मुश्किलात को उसे सामना करना पड़ा। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर सब बात करते हैं। Assalamu alaikum. My name is Amy. I want to reintroduce myself and retell my story because I'm getting a lot of new followers. I'm getting a lot of new questions, which I have addressed in past TikToks. So basically, this video is for if you're new here or if you're not new here and you just had some questions. So I am a 26-year-old Muslim revert. And I do own a business. I've owned it for 3 years. And I also am a single mom. My son will be 6 soon. I have been a Muslim for almost 5 years. And it has been the best almost 5 years of my life. Nobody forced me. Nobody coerced me. I didn't do it to make a man fall in love with me, and I didn't do it for those reasons. I did it for myself. So what piques my interest in Islam? I always knew about Muslims. I was raised in Western society, so I believed what the Western media portrayed, what my family believed. I had no idea. Okay, I thought it was a dark, twisted religion, astaghfirullah. Like, I really did think that. And I feel so bad for the people who were like me because it's literally just ill education. They're just misled. They really don't know. So their racist acts are off of things that they truly think are right. I was in a really bad place. I was a big drinker, big partier, I don't give a beep, I did whatever I wanted, whenever I wanted, and I was super depressed. I was super unhappy, and I tried to end my life. When I was in the hospital getting help, I read the Quran. I read the Quran out of curiosity. I did not think it was going to help me. The first thing that really made me be like, wait a second, was I couldn't find any scary terrorism. I couldn't find any bad things in the Quran. Second thing is the science. Undeniable scientific facts in the Quran that were not discovered for thousands of years later by science. So the Quran would state something, about water or sperm or the Big Bang, and those things were not known back then. And subhanAllah, I could go on, but I'm running out of time. And I pray that Islam continues to bring my soul peace as well as yours. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। इस बहन की जो दास्तान थी इस्लाम कबूल करने की, वो भी आप लोगों ने सुनी है दोस्तों। तो इसका ये भी कहना है कि दोस्तों मेरा एक 6 साल का बेटा भी है और मेरा अपना जो है एक कारोबार है, एक छोटा सा बिजनेस है, मैं वो भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी पालती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहन जो है वो इस्लाम कबूल कर ले और फिर अपने लिए अकेले में जद्दोजहद करे, इस्लाम के लिए तकलीफ़ात उठाए और इस्लाम कबूल कर ले। वही लोग जो तो दोस्तों आजकल ज़माने में अगर आप लोग देखें, जितने भी फॉरेन कंट्री में वहाँ पे लोग रहते हैं, वो मुसलमानों से जितने लोग वो नफ़रत करते हैं, उनके दिल में जितना बोझ वो मुसलमानों के लिए रखते हैं, फिर मैं उन लोगों के लिए सलाम पेश करता हूँ दोस्तों, उन बहनों के लिए जो कि इस्लाम के बारे में स्टडी करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है दोस्तों यही लोग हैं जो कि इनको अपने पेरेंट्स जो है वो घर से भी निकाल लेते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन यही लोग हैं दोस्तों कि अल्लाह ताला इनकी हामी बन लेता है, इनकी मदद करता है। और यही लोग हैं दिन रात अपनी मेहनत जारी रखते हैं। ये किसी के बलबूते नहीं बैठे होते हैं, बल्कि अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए जद्दोजहद करते हैं, वो उसी रास्ते पर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि फॉरेन कंट्री में जितने भी लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मैं सबसे बड़ी यहाँ पे एक बात यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं दोस्तों के इल्म रखते हैं, कुरान मजीद पर स्टडी करते हैं, ऊपर उन्हीं हक और सच बातों के साथ खड़े होते हैं, अपने मज़हब को छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर उनके ख़ानदान में उनको छोड़ देते हैं, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनकी बहनें, जितने भी रिलेटिव होते हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं। फिर यही लोग उन्हें अपने लिए
जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला इनका साथ देता है, अल्लाह ताला इनकी मदद करता है, यही लोग हैं सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे मुसलमानों के लिए, बल्कि ये एक इबरत की निशानियाँ हैं दोस्तों कि नान मज़हब के जितने भी लोग हैं, हमारे बहनें हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और अपने लिए जद्दोजहद करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे बहन भाई हैं, वो उनको चाहिए कि इस्लाम पर भरपूर तरीके से अमल करें। हम लोग जो दोस्तों 5 वक्त के ठीक तरीके से हम नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर हम नमाज पढ़ते भी हैं तो दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, उससे अपने आप को जो है या जान छुड़ा लेते हैं, या जल्दी जल्दी सजदा कर लेते हैं, या तहिया जल्दी जल्दी सलाम कर लेते हैं। बल्कि यही नहीं है, बल्कि हमें खूब इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए। और यही कुरान मजीद है जहाँ पे कभी कोई लोग पढ़ते हैं या कोई लोग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें और समझें कि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में हमें क्या हुक्म दिया है। वही जितने नान मज़हब के जो लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वही लोग कुरान मजीद को उठाते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं और उन पर अमल करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है हमारे मुसलमानों के लिए दोस्तों। और हम लोग मुसलमान होते हुए हमने कुरान मजीद को छोड़ा है, हमने उनकी तालीमात को छोड़ा है, बल्कि हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करें भरपूर। अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं उन पर अमल करें, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखें, अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी को मजबूती से हमने पकड़ ले और उसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करेगा दोस्तों। तो अल्लाह ताला इस बहन की जिसने इस्लाम कबूल किया है, जिसका 6 साल का बेटा भी है, उसने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की और इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के रास्ते पर आई है। तो अल्लाह ताला और भी इनके रास्ते आसान कर, अल्लाह ताला और भी इनके जितने भी मुश्किलात हो वो हल करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।